Morning students. Let's move towards the second lecture of second chapter, that is heredity fundamentals of genetics. In last lecture we have discussed what was the contribution of Mendel, what was the reason behind his success and what was the reason behind his initial he was not able to recognize because of some reason. We have discussed all those factors. We have discussed certain definitions and it's a just quite a quick reminder that these definitions are very important, and without understanding of these definitions you are not able to understand the entire chapter. And these two units like cell cycle and heredity, it's have a weightage around like this time it could be have weightage around 18 to 20 marks. So please be careful and let's revise all those factors very carefully. I want to give a quick revision of a allele because I found that certain students were having a problem in allele. What is allele? Allele क्या है? Allele का spelling में correct करेंगे. Allele is a different form of a gene. किसी जीन की different form को different form और alternative form of a gene is called allele. पहला तो इसके अंदर ऑपरेटिव वर्ड क्या है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन और ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन, ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन, जो सेम पोजीशन पर हैं, सेम पोजीशन ऑफ किसका, कहाँ पर ऑक्यूपाई होंगे सेम पोजीशन पे, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम पर होंगे. किसके लिए? क्या वो डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए हो सकते हैं? नो, फॉर अ सेम कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए. ओके, सो दिस इज अ जीन, ये एक जीन है 1 2, दिस इज अ वन जीन. ओके, सो एंड सपोज दिस इज अ जीन फॉर हाइट ऑफ अ इंडिविजुअल. So this is a one kind of allele, or this is a one form of a gene. This is the another form of a gene on the same position for a same character. I mean ये ऐसे हो सकते हैं capital A small a, यानी कि this is for the tall height, this is for the short height, and there is a possibility that there could be a gene like this in which we have a hybrid variety. Hybrid variety means this particular gene has the character of tall and character of shortness also. Okay, now today we will understand how these characters actually affect, and there are certain rules. ये इसके पास character दोनों हैं, but will it tall or will it short, that we will discuss today. Okay. Because there was a query by some student that I don't understand allele, so I thought let's give a quick revision. Okay, today we will discuss Mendel's law of inheritance. Yesterday I told, in the previous video I told you that there was a Darwin. Darwin has given the theory of evolution. Darwin has given the theory of evolution. What he suggests that there is a struggle for existence. हर एक population के अंदर there is a struggle for existence, and struggle for existence means कि हम अपने खाने के लिए struggle करते हैं, हम रहने के लिए struggle करते हैं, हम climate से struggle करते हैं. After that he has given the theory of survival of the fittest. पहला theory क्या था उनका? Struggle for existence. This year this particular topic is not in detail, it is not in your syllabus. Struggle for existence. The second theory was survival of fittest, survival of fittest, and the third theory was natural selection. Now what was these theories? What Darwin said? Darwin said that how evolution occur, evolution कैसे हुआ है. फर्स्ट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. एवरी पॉपुलेशन, एक ऑयस्टर एक बार में 1000+ थाउजेंड की मल्टीपल्स में इट प्रोड्यूस एग. यदि इतने सारे एग उसके डेवलप हो जाएं तो क्या होगा?
तो एक दिन ऐसा होगा कि द एंटायर अर्थ विल बी कवर्ड विद द oysters only. Similarly, one elephant can produce मतलब अपनी लाइफ साइकिल में it can produce 7 to 8 baby elephants. And their life cycle is of around 100 years. If all will survive, यदि वो अपनी अपनी पूरी लाइफ जी जाते हैं, then after 750 years the entire earth will covered with elephant only. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता. एवरी इंडिविजुअल हैव स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. सबके बीच में अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल है. कोई ठंड से, कोई गर्मी से, कोई खाने से, कोई पीने से, कोई रहने से, कोई जानवरों से. मतलब वी हैव लॉट ऑफ स्ट्रगल इन फॉर आर एग्जिस्टेंस. ओके, देन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इन दिस जर्नी ऑफ द स्ट्रगल देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म दे सर्वाइव. जो हिट है वही, जो फिट है वही हिट है. जो सर्वाइव कर गया वो बच गया, जो सर्वाइव नहीं करेगा वो नहीं बचेगा. और जिन करेक्टर में या जिन ऑर्गेनिज्म को वो सर्वाइव हो जाता है वो करेक्टर में नेचुरल सिलेक्शन होता है. यानी कि जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे जिराफ थे. अर्लियर जिराफ वॉज वेरी शॉर्ट एज पर डार्विन. एंड धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे नीचे नीचे की घास खत्म होने लगी. एंड दीज जिराफ स्टार्ट्स टू अपना पैर ऊंचा करने लगे, गर्दन उन्होंने खींचनी शुरू कर दी ताकि वो ऊपर के बड़े बड़े प्लांट्स के लीव्स को खा सकें. बट देयर वर सर्टेन जिराफ दे हैव डिसाइडेड अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमने कुछ नहीं करना है. फ्यू हैव ट्राइड बट दे वर नॉट सक्सेसफुल. कुछ ने कोशिश की लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए. फ्यू हैव ट्राइड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. लेकिन उस ट्राई में क्या किया, उन्होंने थोड़े थोड़े चेंजेस करने शुरू किए. उन्होंने अपनी हैबिटाट को चेंज किया, उन्होंने अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज किया. अभी घास के बजाय वो थोड़े ऊंचे वाले प्लांट्स के बुशेस को खाने लगे, उनकी लीव्स को खाने लगे. और इस सब में जो भी उनके कैरेक्टर में चेंज आया वो सेलेक्ट हो गया, नेचर ने सेलेक्ट कर लिया और उस तरीके से नया ऑर्गेनिज्म बन गया. ये थ्योरी दी डार्विन ने. And he has written a book also, and this is a very important question. He has written the book Origin of Species. उन्होंने एक बुक लिखी Origin of Species, ठीक है. But he was not able to explain how it happens. कैसे वो समझ आ गया चलो कि घास खत्म हो रही थी, ऊपर वाले पेड़ों को खाना शुरू किया जिराफ ने. बट हाउ दे उस जिराफ में तो चलो अडाप्टेशन आ गया, बट हाउ दैट अडाप्टेशन ट्रांसमिट टू नेक्स्ट जनरेशन. वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट हुई. मेंडल वाज सेइंग कि समथिंग इज देयर विच ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. सम फैक्टर्स आर देयर विच कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. बट ही वॉज नॉट एक्सप्लेन कि वट वॉज दैट फैक्टर. और डार्विन ने तो उनके बारे में कोई बात ही नहीं की अभी. डार्विन इज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट. And this theory of evolution is very very valid. बट यहाँ प्रॉब्लम क्या था खाली कि अभी हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये जाएंगे कैसे नेक्स्ट जनरेशन में. इसी थ्योरी के बीच में एक और थ्योरी थी वीजमान. मतलब वो पहले थी एक्चुअली. तो व्हाट वीजमान हैज सेड कि नहीं, मतलब जो भी कैरेक्टर हम जिसको हम यूज़ करते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है और जिनको हम यूज़ नहीं करते वो नहीं जाएंगे. लेमार्क वॉज ऑल्सो देयर. तो वीजमैन ने क्या किया कि ही हैज़ डन एक्सपेरिमेंट ऑन आई थिंक अराउंड 200 स्पीशीज जनरेशन्स ऑफ रैट. और हर जनरेशन में उन्होंने चूहे की पूँछ काट दी, ये सोच के कि अब ये पूँछ को यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, तो शायद ये नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे. नेक्स्ट जनरेशन के जो चूहे हैं वो बिना पूँछ के पैदा होंगे. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. 200 जनरेशन के बाद में भी चूहा पूँछ के साथ ही पैदा हुआ. दिस थ्योरी वॉज ऑल्सो डिस्कार्डेड. सो इन सब के बीच में मेंडल हैज़ गिवन अ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड ही सेड दैट समथिंग इज देयर विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. Okay, so this was the entire journey or struggle for the experiment. Now, which plant Mendel has selected? Mendel has selected garden pea. एक और बात है बच्चों, कुछ बुक्स में गार्डन पी दिया हुआ है, कुछ में स्वीट पी दिया हुआ है. What I suggest, don't go for anything like garden pea or sweet pea. Go for its a scientific name, that is Pisum
sativum, and don't forget to underline, otherwise you will not get marks. So what is the rule? You have to underline them separately. This is basically it is a garden pea. उन्होंने garden pea plant को select किया for his experiment. Why he selected garden pea? He has selected garden pea because it has a short lifespan. Lifespan short. He has selected garden pea because it is able to do self-pollination as well as in certain condition cross-pollination. He has selected garden pea because he has contrasting character. Sorry, it has contrasting character, not he has. Because when we are comparing the characters, tall जाएगा, short जाएगा, we need a same variety, same plant हमें चाहिए जिसकी tall variety भी available हो, जिसकी short variety भी available हो. Then only we can do some comparison. Okay, and he has selected contrasting character. At one time, it can produce many seeds in abundance. Okay, these were the certain reasons, because for that he has selected garden pea. Now, what was the character he has selected? He has selected 7 character of garden pea for his experiment. अपने experiment के लिए 7 character लिए. One is stem height, and stem height में tall and short. Second is seed shape. Seed shape could be round like this and wrinkled like this. Third is seed color, green and yellow. Flower position, terminal or axial. Terminal means flower is on the top, axial means flower is on the axis. Pod shape, flated or constricted. Now what is flated? This is a flated मटर pea जो इस तरीके से होती है, and sometimes we have constricted. We have this kind of pea also. This entire is pod, an individual seed is called pea. And flower color. That is purple and white. Okay, चलिए, how he has done all the experiments देखिए. He has used 3 terms that I will take with the help of an example. He has given 2 laws actually. One is monohybrid cross, and today we are going to discuss only monohybrid cross. Monohybrid cross means the cross in which mono means one contrasting character we have taken, and hybrid means we are taking the contrasting character of one character, and that hybrid means that the character which will be formed will have both of the character. अभी आपको समझ आएगा कैसे हम करने वाले हैं. Suppose he has taken a tall plant and he has taken a one short plant. So he has taken one contrasting character. Now, what is the representation of allele? Tall we will represent with capital T, and short we will represent with small t. Now, why capital T only? Tall के लिए हमने capital T क्यों लिया? He has taken, देखिए इसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है और एक कैरेक्टर रिसेसिव होता है. What is dominant character? The character which is visible in the next generation. जो नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देने वाला है वो कैरेक्टर होगा डोमिनेंट.
एंड वन ऑफ द कैरेक्टर विल मास्क, वो छुप जाएगा, दैट इज अ रिसेसिव। अब आपके फादर टॉल हैं, मदर शॉर्ट हैं, तो आप ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना कि टॉल और शॉर्ट के बीच की कोई कहानी आएगी, ठीक है, या तो टॉल होंगे या तो शॉर्ट होंगे, ठीक है। तो यदि आप टॉल हैं तो वो आपका फादर का डोमिनेंट कैरेक्टर है, और यदि आप शॉर्ट हैं तो वो आपकी मदर का डोमिनेंट कैरेक्टर है। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि घर में किसी की ज़्यादा चल रही है तो वो डोमिनेंट है घर में तो उसका कैरेक्टर भी डोमिनेंट होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। इन दोनों में से कोई भी कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, बट मैंडल ने जितने भी डोमिनेंट कैरेक्टर हैं उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है, और उन्हीं डोमिनेंट कैरेक्टर के फर्स्ट लेटर को उसने एलील का रिप्रेजेंटेशन लिया है। जैसे कि टॉल एंड शॉर्ट में मेंडल ने टॉल को डोमिनेंट कैरेक्टर माना, तो टॉल का कैपिटल टी जो है उसी को उसने सिंबल के फॉर्म में ले लिया। क्लियर? सो दिस इज द पेरेंट जनरेशन, ये पेरेंट जनरेशन है। एंड याद रखिए ये आपको पी से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द क्रॉस, आई मीन अब हम इनके बीच में क्रॉस कराने वाले हैं। कैसे क्रॉस कराएंगे देखिए, यदि ये कैपिटल टी विल कंबाइन विद स्मॉल टी, it will form capital T small t. This is a hybrid variety because it contain both the character of tallness and shortness. Clear? They will combine and form capital T small t. This is also a hybrid variety. Now this T will combine with this T and this T will combine with this one T. ठीक है, या फिर आपको ये थोड़ा कंजस्टेड लग रहा है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये लीजिए, दिस इज अ टॉल प्लांट पेरेंट जनरेशन का, एंड दिस वन इज अ शॉर्ट प्लांट अनदर पेरेंट जनरेशन। ये टॉल प्लांट के लिए, ये शॉर्ट के लिए। नाउ दीज टू विल क्रॉस एंड फॉर्म कैपिटल टी स्मॉल टी, दीज टू विल फॉर्म कैपिटल टी स्मॉल टी, दीज टू विल फॉर्म कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये आपस में क्रॉस करके क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज कॉल्ड प्यूनेट स्क्वायर। आप ऐसे बना सकते हैं या फिर आपकी मर्जी है, बट जो भी बनाने का तरीका आपको बस क्या ध्यान रखना है, इट शुड बी वेरी क्लियर। दिस इज टॉल प्लांट, दिस इज शॉर्ट प्लांट, this is the parent generation. When we have cross between them, they combine capital T small t, capital T small t, capital T small t, and this one also capital T small t. And this is the F1 generation. This is the F1 यानी कि first philalial generation. क्या बोलते हैं उसको? First philalial. फाइलेलियन का मतलब होता है नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जनरेशन, जो उनकी ऑफस्प्रिंग मिलते हैं उनको हम फर्स्ट फाइलेलियल जनरेशन कहते हैं। अब व्हाट यू कैन नोटिस, एवरी इंडिविजुअल, एवरी ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग होते हैं द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में जो बच्चे बनते हैं, यंगर्स बनते हैं, उनको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ये जो ऑफस्प्रिंग है इन सब के पास में हाइब्रिड वेराइटी है, मीन्स दे हैव टॉल शॉर्ट सबका करेक्टर है। बट हमें पता है कि टॉल जो है वो डोमिनेंट करेक्टर है, और टॉल डोमिनेंट होने की वजह से ये विजिबल होगा, ये वाला करेक्टर दिखाई ही नहीं देगा। ये हमारे पास में करेक्टर है लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा। तो F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स आर टॉल, 4 प्लांट्स हमको मिलते हैं, एंड ऑल प्लांट्स आर टॉल, ये सारे के सारे टॉल ही होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, in next we are going to discuss dihybrid cross, and I think dihybrid cross I will discuss tomorrow. ठीक है, बट इससे पहले एक और देखिए, दिस इज द F1 जनरेशन, इनके बीच में हमने क्या कराया हुआ है, क्रॉस पॉलिनेशन कराया है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गो फॉर दैट F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन में क्या होगा, हम F1 जनरेशन के 2 प्रोजेनी लेंगे, वी विल टेक 2 प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन। हमें F1 जनरेशन में मिले, इनके बीच में हम क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे। दिस इज F1 जनरेशन, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, एंड दिस वन इज स्मॉल t स्मॉल t।
ओके, दिस इज प्योर टॉल, दिखने में तो ये दोनों भी टॉल है, और ये क्या है, शॉर्ट। तो फिनोटाइपिकली, फिनोटाइपिक रेशियो हम लिखेंगे इसका। फिनोटाइपिक का मतलब हुआ दिखने में, फिनोटाइपिकली क्या होगा, तेरा 3 टॉल 1 शॉर्ट, सो रेशियो विल बी 3:1। ओके, बट जीनोटाइपिकली यानी कि इनके जीन्स के कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर यदि हम देखें तो वी हैव 1 प्योर टॉल, वी हैव 2 हाइब्रिड टॉल एंड 1 शॉर्ट। एक हमारे पास में टॉल है, दो हमारे पास में हाइब्रिड टॉल है, एंड 1 इज शॉर्ट। This is a phenotypic ratio, this is a genotypic ratio. This entire topic is very very important. इसको आप अच्छे से आज रिवाइज करेंगे। कल हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं फॉर सर्टेन क्वेश्चंस, एंड वी विल डिस्कस मेंडल्स लॉ फर्दर इन डिटेल. So today what you have to do, you have to learn the definition of monohybrid cross, how we are doing the monohybrid cross, revise the definition of allele and homologous chromosome. Till then, take care, goodbye.